Before proceeding further, let us have a view what we have discussed in the Hitof's theoretical device. Hitov theoretical device is a simple construction that shows three compartments where there is a exchange of the ions takes place by the application of the electricity. Positive ion moves toward the negative electrode and negative ion moves toward the positive electrode. Irrespective of the number that migrates from one compartment to the another compartment doesn't causes any difference. There is a equal deposition of the cations or discharge of the cations or anions at the respective electrodes that we have seen earlier. The design of the theoretical device, Hitov theoretical device, is such that this first compartment there is a change in the ions or ions they are migrating into or away from this compartment. From this last compartment again there is a migration of the ions either into or away from this. I haven't said anything about the central compartment. It means central compartment is left undisturbed or you can say unattended at all. On the same pattern which I have or we have discussed this theoretical device, the Hitov designed actually same device for determination of the transport number of the particular ion or transference number of the particular ion. It is either transport number or it is either the transference number. We see here later on that whatever in the fall in the concentrations are there, they are proportional to the corresponding speeds of the ions. Whatever concentration around the anode that moves away, it is proportional to the speed of the cation. Whatever the concentration that moves away from the cathode, that correspond to the speed of the anion. So if we divide them, we have the ratio. There is a cancellation of the constant of proportionality and simply fall in concentration around anode to the fall in concentration around cathode is equal to speed of cation and the speed of anion that we have discussed already. Second case I am not going to interpret just now. We will discuss it later on. But now I am directly coming to the point. What is how to determine the transport number? Before proceeding further, let us see here what I said regarding the transference number or transport number. It is the fraction of the current that is being carried by the ion. What fraction is carried by the cation? It is transport number of the cation or transference number of the cation. What fraction it is carried by the anion? It is transference number of the anion. Usually the sum of these two transport numbers, that is the transference number of the cation plus transference number of the anion, that is always equal to 1. एग्जाम्पल के तौर पर अगर HCl की बात करें तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन का अपना ट्रांसपोर्ट नंबर होगा, Cl नेगेटिव का अपना ट्रांसपोर्ट नंबर होगा. विच विल मूव फास्ट दैट will have more transport number and which will move less that will have the less transference number. अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में H पॉजिटिव आयन का साइज बहुत कम होगा, बहुत आसानी से मूव कर जाएगा. Cl नेगेटिव आयन जो वो स्लोली मूव करेगा. तो ऑब्वियसली 70% of the current that is being carried by the H positive ion rather than the Cl negative ion. तो 0.7 H पॉजिटिव का हो सकता है और 0.3 जो क्लोरीन का हो सकता है. ये एक सपोजिशन है. वी आर नॉट द एक्चुअल फिगर्स. वट दैट मैटर्स विच मूव्स फास्ट एंड विच मूव्स स्लो. What the sum of the two transference numbers, that is always equal to 1. Now let us come across what is the Hitov's method of determining the transport number. Not proceeding to the practical aspect first, let us see what is the theoretical consideration regarding the Hitov method. So here I am having fall in concentration around the cathode, that is speed of the anion. Cathode directly proportional to speed of anion. And what is the fall in concentration around? Directly proportional to the speed of the cation. It is UA divided by UC.
So doing some modification or mathematical modification, it is 1 plus on the both side. Then I am getting fall in concentration around cathode plus anode, that is equal to sum of the velocities uc plus ua, and it is divided by uc. Then I am reverting it. I am getting fall in concentration around anode, it is uc divided by, it is fall in concentration around the both electrodes, and this relation I am getting uc divided by uc plus ua. What is uc divided by uc plus ua? It is transport number of the cation. So I am having a relation for the transport number of the cation. It is equal to fall in concentration around anode divided by total fall in concentration around the both electrode. लेकिन हमने जो सोल्यूशन लिया होता है उसमें जरूरी नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रोड पे डिपोजिशन हो और ये कैलकुलेट किया जा सके आसानी से कि कितनी वहां पर कंसंट्रेशन जो वहां से अवे मूव कर गई है. तो टोटल फॉल इन कंसंट्रेशन जो है, जैसे मान लो नाइट्रिक एसिड है तो H पॉजिटिव आयन तो मूव कर जाएगा, नाइट्रेट आयन की मूवमेंट बहुत कम होगी. सो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी आंसर रिगार्डिंग हाउ मच नाइट्रेट आयन दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, और नॉट डायरेक्ट वे ऑफ मेजरमेंट रिगार्डिंग दैट. तो इसके लिए क्या करते हैं कि साथ में सेल के साथ में एक सीरीज में हम जो है वो एक और सेल लगा देते हैं जिसको हम वोल्टामीटर भी बोलते हैं या जिसको हम कूलोमीटर भी बोलते हैं. उसको वो सिल्वर कूलोमीटर भी हो सकता है, वो कॉपर कूलोमीटर भी हो सकता है. कॉपर कूलोमीटर या सिल्वर कूलोमीटर कोई स्पेशल चीज नहीं है. इसमें एक ही मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं. अगर कॉपर कूलोमीटर है तो दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो कॉपर के होंगे, एक साइड भी दूसरे साइड भी. सॉल्यूशन बीच में कॉपर आयंस का होगा, तो कैथोड भी कॉपर का होगा, एनोड भी कॉपर का होगा, और सॉल्यूशन बीच में कॉपर सल्फेट का होगा. अगर सिल्वर कूलोमीटर है तो एक इलेक्ट्रोड भी सिल्वर का, दूसरा इलेक्ट्रोड भी सिल्वर का, और सॉल्यूशन बीच में किसका रहेगा? सिल्वर नाइट्रेट का रहेगा. इसमें कुछ नहीं होता है. जब आप करंट पास करते हैं तो एक साइड से इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होता जाता है और दूसरे साइड सेम नंबर ऑफ आयंस जो वो इलेक्ट्रोड के डिपॉजिट होते जाते हैं. तो हमेशा जो वो सिल्वर कूलोमीटर या कॉपर कूलोमीटर की हेल्प ली जाती है फॉर डिटरमाइनिंग हाउ मच फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड द बोथ इलेक्ट्रोड इज देयर. So that fall in concentration around the both electrode, it can be replaced if I am attaching a copper coulometer, number of gram equivalents deposit in the copper kilometer, and how many number of gram equivalents lost from the anodic compartment, that gives what the concentration that has been moved away from the anode. So if we are able to determine these two parameters, we can easily calculate the transport number of the cation. Now let us move to the design of the copper coulometer, or Hitov method. This one, what is the Hitov actual practical aspect of Hitov, that how to determine the transport number of the particular metal ion. So I think it is visible fully to you. This is the device that he has used to determine the transport number of the cation. So see here, this is first compartment here bearing positive charge. This means it is anode. Here it is the cathode, this is negative. So this is one electrode fully, this is another electrode here. So let us see it from the front. So view, now I think it is clear to you. It is the first portion, that is anode here, that is the cathode here. तो इसमें एक सॉल्यूशन जो वो ऐड किया हुआ है, बीच में एक यू टाइप ट्यूब है, आपको शायद पूरी नजर नहीं आ रही है ये. नो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. इट इज द यू टाइप ट्यूब एट द सेंटर हेयर, एंड देन अनदर कॉलम हेयर. इसकी क्या स्पेशलिटी है कि हर एक कूलम को जो वो डिटैच किया जा सकता है. जैसे ये फर्स्ट वाला कूलम है, ये जो एनोड है, इसको पूरे ग्लास अपरेटस को डिटैच कर सकते हैं, यू ट्यूब को अलग से डिटैच कर सकते हैं, और साइड वाइज ट्यूब को अलग से डिटैच कर सकते हैं. हियर देयर इज ए बैटरी दैट इज यूज हियर. द मिलीमीटर इज देयर टू एडजस्ट द करंट वेरिएबल रेजिस्टेंस दैट इज बीइंग अटैच्ड हियर, एंड साइज वाइज there is a
copper colorimeter or there is a silver colorimeter depending upon the requirement whatever it is being required. तो ये कुलोमीटर है साथ में, तो एक इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव जो है वो भी उसी मेटल का है, दूसरा इलेक्ट्रोड भी उसी मेटल का, और बीच में जो सोल्यूशन है दैट सोल्यूशन इज ऑफ द कंसर्न्ड आयंस. इफ कॉपर इलेक्ट्रोड इट इज copper 2 positive, if it is silver electrode then it is a silver ion solution. Now let us come again regarding the how it works and what is the way of the working of this apparatus. इसमें ऐसा है कि जो जिस भी सॉल्यूशन का आपने जिस भी मेटल आयन का आपने जो वो ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है उसी मेटल आयन का सॉल्यूशन जो वो इसमें ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर का निकालना चाहते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो इसमें ऐड करना है. बीच में यहां भी सारा सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, यहां भी सारा सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है. ये हिट ऑफ थ्योरेटिकल डिवाइस से पूरा मैच करता है क्योंकि यहां पर हम सेंट्रल कंपार्टमेंट की कंसंट्रेशन जो वो किसी भी हालत में अल्टर नहीं होने देते हैं, लेकिन जो एनोडिक कंपार्टमेंट है उसकी कंसंट्रेशन अल्टर हो सकती है, कैथोडिक कंपार्टमेंट है उसकी कंसंट्रेशन जो वो अल्टर हो सकती है, लेकिन सेंट्रल कंपार्टमेंट की कंसंट्रेशन अल्टर नहीं होनी चाहिए. जब भी करंट पास करते हैं प्रैक्टिकल खत्म हो जाता है इसका, तो सेंट्रल कंपार्टमेंट की कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंटल से पहले भी चेक होगी, एक्सपेरिमेंट के बाद भी चेक होगी. अगर इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज आती है तो प्रैक्टिकल द्वारा रिपीट करना पड़ेगा. सो ऐसा होना चाहिए कि इसमें कंसंट्रेशन जो हो वो अल्टर ना हो. अब जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो मूवमेंट ऑफ आयंस होगी, तो वहां पर कंसंट्रेशन अल्टर होना जो पॉसिबिलिटी है. तो इसमें ऐसा करते हैं कि बहुत स्लो करंट जो है या लो वैल्यू ऑफ द करंट यानी बहुत कम करंट जो वो सॉल्यूशन में से पास करते हैं और सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब रखते हैं ताकि कहीं भी डिफ्यूजन ना हो. डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है जैसे एक साइड कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरी साइड से कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो जहां ज्यादा कंसंट्रेशन है वो आयंस कम कंसंट्रेशन की तरफ जो वो माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं. तो जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है या एनोडिक कंपार्टमेंट में जब कैटायंस यहां से मूव अवे कर जाएंगे तो सेंट्रल कंपार्टमेंट में से जो वो आयंस का डिफ्यूजन हो सकता है. तो ये डिफ्यूजन नहीं होना चाहिए. यहां पर एनाइन कम हो जाएंगे तो इस साइड एनाइन का डिफ्यूजन जो वो नहीं होना चाहिए. सो केयर इज टेकन दैट देयर शुड बी नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सेंट्रल कंपार्टमेंट. तो उसके लिए लो वैल्यू ऑफ करंट जो है 0.01 या 0.02 एम्पियर का करंट जो इसमें से सेल में से पास करेंगे. द करंट इज नॉट पास्ड फॉर द few seconds, it is passed for 2-3 hours in order to get the particular change in concentration or fall in concentration or away movement of the ions कि ions की वहां से movement जो है वो कहां से एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट से हो जाए. तो जैसे ही इसमें से करंट पास करेंगे तो यहां से कैटायंस जो वो मूव कर जाएंगे, इस साइड से एनाइन मूव कर जाएंगे. सो देयर इज ए फॉल इन कंसंट्रेशन in the anodic compartment as well as fall in concentration in the cathodic compartment. How much total fall in concentration that can be viewed or it can be taken the help from this copper colorimeter or the silver voltammeter that I said earlier about that कि इसकी हेल्प से जो है वो आप टोटल फॉल इन कंसंट्रेशन जो है वो निकाल सकते हैं. किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है? जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक्सपेरिमेंट में हम वेट्स जो वो कंसीडर करते हैं क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो वो चेंज हो जाता है. तो जो एनोडिक कंपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल कैटाइन का हम ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल रहे हैं तो एनोडिक कंपार्टमेंट का पहले हम वेट कर लेंगे. इसमें कितना आयंस हैं, इसमें सिल्वर आयंस वो किसी वे से डिटरमिन किया जा सकता है और सबसे इजी वे है कि उसको अगर सिल्वर आयन है तो पोटासियम सल्फोसाइनाइड से ट्राइटेट करके जो है वो टोटल सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन पहले निकाली जा सकती है.
जब आपने करंट पास कर दिया तो ऑटोमेटिकली आयंस की मूवमेंट हो जाएगी, तो वहां से आयन की मूवमेंट होगी तो इसका मतलब कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट के बाद भी आप जो वो टाइट्रेशन से निकाल सकते हैं कि उसमें कितने आयंस बचे हैं। तो उन दोनों का डिफरेंस लोगे तो दैट इज द फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड द कैथोड। तो इस तरीके से जो है वो इस एक्सपेरिमेंट को किया जा सकता है। हाउ टू डिटरमिन द वेट्स, वेट डिटरमिन करने के लिए पहले हम जो है नीचे सबने ओपनिंग लगी हुई है, तो इस ओपनिंग को पहले इसका विद सॉल्यूशन वेट ले लेंगे, उसके बाद इसको खाली कर देंगे और फिर अपरेटस का वेट ले देंगे। दोनों का वेट करोगे तो वहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन जो वो आपके पास आ जाएगा, सेंट्रल कंपार्टमेंट का भी, कैथोडिक का भी और एनोडिक का भी। नो हाउ टू डू द कैलकुलेशन, लेट अस सी दैट। सो कैलकुलेशन, द केस फर्स्ट हियर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। Suppose I am taking the case where the electrodes are not attacked. इसका मतलब जो ऊपर हमने डिस्कस किया उसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं, तो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड के ऊपर सिल्वर या नाइट्रेट आयन अटैक नहीं करेगा। तो वो केस जो पहला डिस्कस करने जा रहा हूं। अब बात करते हैं कि आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस बाद में डिस्कस करते हैं कि आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस क्या क्या किया जा सकता है। पहले वेट ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट लेना है। तो ये जो ऊपर एनोडिक कंपार्टमेंट है इसका टोटल का आपने जो वो वेट निकाल देना है। वेट ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट फाउंड टू बी प्रेजेंट, तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट का कितना वेट है वो निकाल लेना है। तो पहले तो आपने इसमें सोल्यूशन का वेट निकालना है, पूरे अपरेटस का नहीं। वो तो आपकी कैलकुलेशन है कि किस तरीके से करते हो कि सोल्यूशन का कैसे निकाला। पहले टोटल सोल्यूशन के साथ इसका वेट ले लिया, उसके बाद इसको खाली कर दिया, तो दोनों का डिफरेंस करके आपके पास वेट ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट आएगा। क्या आएगा? पहले ग्लास के साथ वेट, फिर सॉल्यूशन के साथ वेट, दोनों को लेस कर दिया, दैट इज द वेट ऑफ द एनोडिक कंपार्टमेंट। उसके बाद वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फाउंड टू बी बाय टाइट्रेशन। सो टाइट्रेशन से आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं कि इतने सॉल्यूशन में कितना सिल्वर नाइट्रेट जो वो प्रेजेंट है उसमें। कैसे बताया मैंने? पोटाशियम सल्फो साइनाइड से आप टाइट्रेट करके निकाल सकते हैं हाउ मच सिल्वर नाइट्रेट इज प्रेजेंट देयर। जब दोनों को लेस करेंगे आप इनको, तो आपके पास वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। ये टोटल सॉल्यूशन का वेट था। वेट ऑफ द एनोडिक कंपार्टमेंट मींस हाउ मच सॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन द एनोडिक कंपार्टमेंट, दैट इज द वेट ऑफ द एनोडिक कंपार्टमेंट। टाइट्रेशन के बाद आपने उसमें से ये निकाल लिया कि कितना उसमें सिल्वर नाइट्रेट है, दोनों को लेस कर लिया, दैट इज गिविंग द वेट ऑफ वाटर। नाउ दैट मच अमाउंट ऑफ वेट ऑफ वाटर कंटेन्स हाउ मच, इट इज W2 ग्राम ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट। W1 माइनस W2 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स W2 ग्राम ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट। 17 नाउ हाउ टू कैलकुलेट हाउ मच सिल्वर इज प्रेजेंट। तो 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट में 108 जो वो क्या है? सिल्वर है। 170 क्या है? इसका मोलर मास है। मोलर और इक्विवेलेंट मास दोनों इक्वल होंगे क्योंकि यहां पर इसके ऊपर बैलेंसी कितनी है? +1 और -1। सो इट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1, सो दैट इज 170। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स है ये। तो 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट में 108 ग्राम सिल्वर होता है। 1 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट में 108 डिवाइडेड बाय 170 ग्राम ऑफ सिल्वर, एंड इन W2 इट इज मल्टीप्लाइड बाय W2। और इसमें इतना ग्राम सिल्वर है, लेकिन उसको हमने ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, तो इसको इक्विवेलेंट वेट 108 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। सो दैट इज डिवाइडेड बाय 108। सो 108 गोज विद 108, you are getting here W2 gram of the silver nitrate contains W2 upon 170 gram of silver, that is equal to Y gram equivalent, that is equal to Y gram equivalent। तो ये कैलकुलेशन जो मैंने कब की? इट इज डन आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ लेट अस सी बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस क्या कंडीशन थी। तो इसी तरीके से बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस भी आपने एनोडिक कंपार्टमेंट का वेट करना है, वेट ऑफ द एनोडिक कंपार्टमेंट। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट का वेट निकालना है, उसके बाद कितने वाटर में वो प्रेजेंट है वो निकालना है। लेकिन
वेट इक्वल लेने के लिए जितना वाटर का वेट ऊपर था उतने वाटर में कितना सिल्वर नाइट्रेट प्रेजेंट है वो आपने नीचे निकालना है। तो इसीलिए मैंने W1 माइनस W2 ग्राम ऑफ ग्राम वाटर कंटेन्स हाउ मच सिल्वर दैट इज बीइंग टेकन। तो सपोज वैल्यू आती है आपके पास x, तो बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस जो वो x की वैल्यू ज्यादा होगी, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस y की वैल्यू जो वो कम होगी। So what is fall in concentration? It is x minus y gram. So substitute these values and substitute number of gram equivalent deposit in the copper colorimeter. You will get the value of the transport number. So that is the formula for transport number. It is x minus y upon z, that is T positive. और 1 से लेस करके आप जो वो anion का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल सकते हैं। How to deal with the case when the electrodes are attacked, that we will discuss in the next lecture.